आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। Esteemed district officers, representative of different political parties, religious organizations, members of Bar Association Kargil, invitees, media fraternity, and guests, a very good evening to you all. On behalf of Deputy Commissioner CLSDC Kargil, it's my honor to welcome you all to this oath-taking ceremony of the nominated councillor of 5th LHDC Kargil of Shri Riaz Ahmed Khan, Advocate. Today marks an important moment in our democratic functioning. We formally induct the newly nominated councillor into the Ladakh Autonomous Hill Development Council. I would like to take this opportunity, Honorable Principal District and Session Judge Kargil, to grant me the kind permission to start the formal proceedings of the oath-taking ceremony. With your kind permission, ma'am. Now I request Shri Advocate Riaz Ahmed Khan to kindly proceed towards the dais to formally take the oath. Kindly, sir. I I, Advocate Riaz Ahmed Khan, have been nominated as a member of Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil, do serve in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. I would like to extend my warm greetings and congratulations to the newly nominated councillor, Shri Advocate Riaz Ahmed Khan. I would like to extend my sincere thanks to Honorable Principal, District and Sessions Judge, Srimati Spalda Sanu ma'am, for gracing this occasion. I would like to extend my thanks to Senior Superintendent of Police, AD Information, Executive Engineer, TDA Kargil, District Youth Services and Sports Officer Kargil, Executive Engineer Mechanical Division Kargil, CMO Kargil, Executive Engineer PDD Kargil, Executive Officer Municipal Committee Kargil, ALC Kargil, and others for their unwavering support for making this event successful. I request all the dignitaries to kindly stand for the national anthem again. Thank you. Sir. 가장 낫죠.
अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे इंचार्ज ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज अशोक कोल जी, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ताशी खजू जी और हमारे तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, हमारे सीनियर लीडर एक्स CC LADC ले श्री ताशी गलसन जी और हमारे करगिल के जो सीनियर लीडर हैं हाजी इनायत अली जी, हमारे प्रेसिडेंट असदुल्ला मुंशी जी और हमारे एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो अभी सेक्रेटरी हैं, अभी सेक्रेटरी है स्टेट के मोहम्मद अली चंदन जी, और साथ ही साथ जो मेरे सारे गांव के जो मेरे लोगों का मैं सबसे पहले उनके दुआओं का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं इस मुकाम के लिए चुना गया और पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया। जी सर, अभी आपसे कुछ देर पहले ही मेंबर पार्लियामेंट ने कुछ क्योरीज उठाए हैं कि ये सीट जो है ये वुमेन्स के लिए थी, तो बीजेपी जहां दावा करती है कि हम वुमेन को रिजर्वेशन देंगे, तो उन्होंने इस पे काफी ये इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि हमने एक आदमी को एक MP चुन के दिया है जिसको LHDC एक्ट पढ़ना नहीं आया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो केडीए बन के जो अभी लद्दाख के लिए एक रोड मैप जो तैयार कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं ड्राफ्ट किया। मैं समझता हूँ कि जी आपसे पहले छोटा सा एक है कि 2005 में शिया सुन्नी जो हमारे मुस्लिम के सेक्ट्स हैं और बड़े जो हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने बहुत मेहनत करके तब 2005 में शिया कम्युनिटी को प्रिंसिपल माइनॉरिटीज में शामिल किया था और हमारे LHDC एक्ट में किया था। आज देखिए किस्मत का रोना, आज हमारे ही MP निकल के बोलता है कि हम ही प्रिंसिपल माइनॉरिटी में नहीं है, जो कि एक्ट उसको शायद पढ़ना नहीं आया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें अफसोस है और अब इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि LHDC एक्ट जिस बंदे को पढ़ना नहीं आया है वो आगे ड्राफ्ट क्या भेजेगा और वो लद्दाख का फ्यूचर जो है केडीए की तरफ से क्या रिप्रेजेंट करेगा, मुझे इस बात का समझ नहीं आ रहा है। और इसके लिए अगर कोई भी अल्ट्रा वायरस या कोई इलीगैलिटी है इसमें, तो देयर इज ए कोर्ट कि हम कोर्ट में अगर कर सकते हैं कोई इलीगैलिटी होगा, तो मैं समझता हूँ कि जितना पढ़ा लिखा हमारा MP होगा, जिस हिसाब से अभी तक तो मुझे नहीं लगता था, लेकिन जिस आदमी को LHDC एक्ट पढ़ना नहीं आया है वो आदमी हमारा फ्यूचर क्या ही डिसाइड करेगा और क्या ही वो ड्राफ्ट देगा। अभी तो लद्दाख का फ्यूचर ही हमें खतरे पे लगता है और जिस तंजीमों ने, जिस रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ने अपनी कुर्बानियां देके 2005 में प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी में सुन्नीस और शियास दोनों को उसमें इन्वॉल्व किया था, जो एक्ट में लिखा हुआ है, आज हमारा ही कौम का बंदा निकल के हमें ही बता रहा है कि हम ही प्रिंसिपल माइनॉरिटीज में नहीं है। जहां तक वुमेन रिप्रेजेंटेशन का बात है, जो नुमो हकीमा हमारा यहाँ पे आपके सामने है, LHDC काउंसलर जो हमारे नॉमिनेटेड है, वो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है और जो अभी ड्राफ्ट हुआ है वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो नए LHDC में होगा, दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंट यार। उसका अभी शायद उनको कानूनी टेक्निकलिटीज का नहीं पता होगा, तो शायद वो इस तरह से बोल रहा होगा। सर, NC कांग्रेस ने बाइकाट किया है, इस पे आप क्या कहना सर जी, बीजेपी के साथ तो उनका हमेशा ही बाइकाट रहा है, इलेक्शन के दौरान ही बाइकाट रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों को मैं बता दूं मैं अपना रिजल्ट कि NC और कांग्रेस ने जब हमें बाइकाट किया तब दोनों मिलके शायद उन्होंने हमें हराया था। तो ये तो उनका ट्रेंड है। अभी बिहार इलेक्शन आपको पता ही होगा, बिहार का रिजल्ट, तो ये तो मतलब सोते जागते उठते बैठते कांग्रेस और NC का तो काम ही है कि बीजेपी को बाइकआउट करना, तो ये कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फ्यूचर क्या स्ट्रेटजीज प्लानिंग रहेंगे सिर्फ खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपको आपके लोगों के तो ये बताना चाहता हूँ कि आज तक जो हमारे नॉमिनेशन जो आए थे, जो कभी मतलब मैं आपको कहूँ, शेर बहुत खतरनाक होता है लेकिन जख्मी शेर बहुत खतरनाक होता है।
मैं पिछले 10 साल से इस काउंसिल को इंतजार करते बैठा हूँ और इस काउंसिल को जितना आज एमपी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, मैं जिस एक्ट पे दिया, जिस सेक्शन में दिया, मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ क्या है क्या नहीं है। इंशाल्लाह अभी दिखेगा कि एलआईटीसी कारगिल जिस तरह से अभी काम करती थी तो शायद उनको अब सोच समझ के काम करना पड़ेगा। हम चुप बैठने वाले नहीं है। हमारा टीम जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे यहाँ पे नोबल हैं और हमारे जो मोस्ट सीनियर हमारे और ऑनरेबल काउंसलर जो चाह है हमारे संस्कार से प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी हमारे स्टेट में है, खास तंजीन लखपत जी भी हैं। तो मैं समझता हूँ हमारी बहुत अच्छी टीम है और इंशाल्लाह दिखाएंगे कि काउंसिल कैसे चलता है।